નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપની સાથે ઉપૃતા મહત્વના સમાચાર. જમ્મુ કાશ્મીરના વૈષ્ણોદેવીમાં નાસભાગ મચી. નાસભાગમાં 12 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 13થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા છે. શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડને કારણે આ દુર્ઘટના બની હતી. દુર્ઘટના બાદ વૈષ્ણોદેવી મંદિરની યાત્રા રોકવામાં આવી છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરના વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. જે પ્રમાણે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ વૈષ્ણોદેવી મંદિર હાજર રહ્યા હતા. ત્યારે નાસભાગ મચી હતી, જ્યારે નાસભાગને કારણે શ્રદ્ધાળુઓમાં 12 શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 13થી વધારે શ્રદ્ધાળુઓ ઘાયલ થયા છે. તો શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડને કારણે જ આ દુર્ઘટના ઘટી હતી. દુર્ઘટના બાદ વૈષ્ણોદેવી મંદિરની યાત્રા રોકવામાં આવી છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરના વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં નાસભાગ મચી હતી. નાસભાગને કારણે 12 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ થયા છે અને 13થી વધારે શ્રદ્ધાળુઓ ઘાયલ છે. તેઓને હાલ અત્યારે ઘાયલ લોકોને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો સહાયની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ થયા છે તે શ્રદ્ધાળુઓને સહાયની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ઘાયલ શ્રદ્ધાળુઓને પણ ખર્ચ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ હતી. જમ્મુ કાશ્મીરના વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ હતી, જેને લઈને નાસભાગ મચ્યો હતો. एक बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे. यहाँ आकर के यहाँ से हमने कटरा से यात्रा शुरू की और यहाँ आकर पता चला क्या कि यात्रा बंद है जी. किस लिए बंद है ये अब पता किया तो लोगों से पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें जितने लोगों की जानें चली गई. जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई हैं. तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे. तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे. उसके बाद सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है. तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायण हॉस्पिटल. सर ये स्टैम्पेड ही हुआ है सर. स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं. हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ. जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ. मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है. उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है. आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ. हम थोड़ा सा मैनेज किए. माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ. તો જમ્મુ કાશ્મીરના વૈષ્ણોદેવીમાં દુર્ઘટના ઘટી છે, જેને લઈને શ્રદ્ધાળુઓને હાલ અત્યારે યાત્રી ઉપર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. તો નાસભાગને કારણે 12 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા અને 13થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા છે. તો હાલ અત્યારે વૈષ્ણોદેવીની યાત્રા ઉપર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરમાં પ્રવેશ્યા હતા અને જેને લઈને વધારે નાસભાગ મચ્યો હતો. તો કોઈ પણ ગમે વાતને લઈને હાલ ત્યારે મંદિરમાં નાસભાગ મચ્યો હતો અને જેને કારણે 12 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે, જ્યારે 13થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા છે. તો મૃતકોના પરિવારજનોને પણ સહાય આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત ઘાયલ લોકોને પણ અત્યારે હોસ્પિટલ ખર્ચ આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે વૈષ્ણોદેવીની દુર્ઘટના અંગે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરી દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને ઘાયલો જલ્દી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના પણ કરી હતી. તો વૈષ્ણોદેવીમાં જે દુર્ઘટના ઘટી તે ખૂબ જ દુઃખદ હતી અને જેને લઈને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. વૈષ્ણોદેવીની દુર્ઘટના અંગે પીએમએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેઓએ ટ્વીટ કરી અને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તો ઘાયલ લોકો જલ્દી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના પણ કરી હતી. વૈષ્ણોદેવીની દુર્ઘટનામાં કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યું છે મૃતકોના પરિવારજનોને 2 લાખની સહાયની જાહેરાત કરી છે. ઘાયલ લોકોને 50,000ની સહાય આપવામાં આવશે.
हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी समीर, क्या था ये समग्र मामला और भगदड़ की उसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है। अभी 31 और 1 जनवरी की रात को हमेशा वैष्णो देवी माता दर्शन के लिए दर्शन करने के लिए एक श्रद्धालुओं की भारी संख्या हमेशा रहती है। और आज भी रात को ये लोग बहुत भारी संख्या में न सिर्फ प्रदेश बल्कि बाकी देशों से, बाकी रियासतों से भी, यहाँ पे राज्यों से भी आए थे। और तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में भगदड़ मच गई। और भगदड़ इसलिए मच गई क्योंकि वहाँ पे कई श्रद्धालुओं को, वहाँ पे एक सीआरपी जवान जो है वो वहां पे खड़ा था, तो अचानक वो नीचे गिर गया। तो लोगों को लगा कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है और उसी पैनिक में, उसी खौफ में लोग इधर से उधर भागने लगे। हालांकि वो खुद अपनी गलती से वहां ऊपर से नीचे गिर गया था। और लोगों को लगा कि हो सकता है कि कुछ आतंकवादी हमला तो नहीं हुआ। तो उसी पैनिक में, उसी भगदड़ में लोग इधर से उधर भागने लगे और ये भगदड़ मच गई। और इसमें अभी तक जो ऑफिशियल हमारे पास जो गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक 12 लोग इसमें डेथ हुई है और 13 लोग जो है जख्मी हैं। और जो जख्मी हैं उनको श्री माता वैष्णो देवी जो कटरा का नारायण हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती किया गया है। और उसके बाद लगातार वहां पे उपचार उनका चल रहा है। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, किसी भी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। और जो यात्रा करने आए थे उनको भी कहा गया है कि फिलहाल वो वहां पे निकल गए हैं, क्योंकि वहां पे जो भवन है और उसके परिसर के आसपास जो है अब सिक्योरिटी को और मजीद सख्त कर दिया गया है। और कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग वहां पे आए थे उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि हालात वहां पे अभी भी नॉर्मल नहीं है। हालांकि भगदड़ की वजह से जितने भी घायल हैं उन सभी को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। और मृतक परिवारों के जो परिजन हैं उनको भी सूचित किया गया है। वो भी कई हरियाणा से 2 महिलाएं कहा जा रहा है कि इसमें है, जो जिनकी डेथ हुई है, जो 2 महिलाएं इसमें शामिल है। कुछ लोग लोकल हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के हैं, जिसमें राजौरी और आरसपुरा से भी है, कुछ हरियाणा से और बाकी जगहों से। तो उनको सूचित किया जा रहा है। 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो मृतक है उनके परिवारों को, और 50,000 जो कंपनसेशन मिलेगी घायलों के परिवारों को, घायलों को उपचार के लिए। और एलजी मनोज सिन्हा ने दुख इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा उपचार किया जाएगा, फ्री में किया जाएगा जितने भी घायल हैं। और पहले ही आपको पता है प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमित शाह ने ट्वीट किया, और पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की वो इस हालात पे नजर रखे हुए हैं। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और फर्स्ट ईयर में हर कोई इंसान जब उठता है तो विश्वास से उठता है, लेकिन इस हालात में ये जो बड़ा सानिया हुआ है हर एक के लिए मिला है, एक दुखद समाचार सबको मिला है। लेकिन फिलहाल जो कोशिशें की जा रही हैं कि जितने भी वहाँ पे घायल हुए हैं उनका उपचार किया जाए और जो लोग हैं वहाँ पे वो वहाँ से हट जाएं, उनकी यात्रा को स्थगित किया गया है। और जब तक कि वहाँ पे पूरे हालात नहीं होते तब तक जो यात्रा है वो अभी शुरू नहीं होगी, कुछ दिन उसमें लग सकते हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनकी तरफ से होना है, लेकिन कुछ सवालात जो है, कुछ कहा जा रहा है कि कोरोना का क्यों आए थे, क्या मैनेजमेंट नहीं थे, क्या सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध नहीं थे। लेकिन उन सवालों का जवाब तो बाद में ढूंढा जाएगा। लेकिन जो पहला अभी प्रायोरिटी है, जो पहला अभी सबसे बड़ा काम है वो है कि जो जितने भी घायल हैं उनका उपचार अच्छी तरह से किया जाए। और इर्द गिर्द जितने भी जो पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो वहाँ पे जो हालात बिगड़े थे, जिस टाइम पर हुआ था, आगे की स्थिति में ऐसा कभी ना हो उसके लिए भी इंतजामिया को, जो श्राइन बोर्ड है उसको कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ पे ये स्थिति है कि अभी जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है, जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को सूचित करके वो जो उनका जो पोस्टमार्टम करने के बाद उनको वापस अपने जो परिवार के लोग हैं उनको दिया जाएगा। जी समीर, तो अभी जो भगदड़ की जो मतलब जो घटना थी उसके बाद यात्रा पर रोक लगा दी गई है, और तो अभी उसके बाद मंदिर की स्थिति कैसी है, और जो यात्रालु है जिसके पर रोक लगा दी है तो उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की है कि वहां पे लोग रह सके और
और कुछ? जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं आपको बता दूं, जितने भी यात्री हैं जो यात्रा करने आए थे और जो यात्रा नहीं कर पाए हैं, उनको वहाँ पे ठहराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उनको होटल्स में और सराय वहाँ पे है, उनको रखा जाए। और कुछ लोग जो हैं जो वापस जाना चाहते हैं, उनको भी वापस अपने अपने राज्यों में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। ये बड़ी चीज अभी है, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रायोरिटी है, बड़ा काम है श्राइन बोर्ड के लिए, इंतजामिया के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कटरा की, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो यात्री यहाँ आए थे और यात्रा नहीं कर पाए, उनको वापस अपने घरों में वापस भेजा जाए, जो जाना चाहते हैं। और जो यात्रा करना चाहते हैं कुछ दिन के बाद, तो उनको वहाँ पे ठहराने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पैसा लेकर चलते हैं अपने घरों से, उनका एक बजट होता है, तो उसको देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैंने कहा कि ये चीज भी बड़ी एक फोकस में है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो दूसरा फोकस है वो ये है कि जो उपचार है, जो उनका जो घायल है, उनका उपचार अच्छी तरह से किया जाए, उनकी उपचार में कोई भी कमी ना हो। जी जी, सभी जानकारी के लिए धन्यवाद। इंतजार कर रही थी। पहली टोली के दर्शन से पहले ही दूसरी टोली भी पहुंच गई। अचानक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर से निकलने और जाने के रास्ते पर भीड़ जुट गई। भारी भीड़ की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो ये चूक होती है, बड़ी लापरवाही तो है, लोगों से भी चूक हुई है। उसके अलावा श्राइन बोर्ड जो पूरी देखरेख करता है, उसकी तरफ से भी चूक हुई है। और ऐसे में इस घटना के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड घायलों का खर्चा भी उठाएगा और जम्मू कश्मीर के एलजी ने मुआवजे का ऐलान किया है। जो लोग मरे हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अमित शाह ने भी घटना की जानकारी ली है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। वो घटना पर नजर बनाए हुए हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। रात का वक्त था, नया साल है, 2022 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर भारी संख्या में देश के कोने कोने से लोग वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। और जो लोग पहले मंदिर गए हैं उनको पता है कि वहां पर वादियां हैं, पहाड़ी रास्ता है। ऐसे में जो भवन में रास्ता है वो काफी। तो वैष्णो देवी મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ હતી અને નાસભાગ મચવાને કારણે 12 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ થયા છે અને 13 થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા છે। જ્યારે આ ઘટના અંગે ખુદ પીએમ મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને જાંચ પડતાલના પણ તેઓએ આદેશ આપ્યા છે કે સમગ્ર ઘટના કઈ રીતે ઘટી હતી। તો રાહુલ ગાંધીએ પણ ટ્વીટ કરી આ અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। જમ્મુ કાશ્મીરના વૈષ્ણો દેવીમાં દુર્ઘટના અંગે રાહુલ ગાંધીએ પણ ટ્વીટ વ્યક્ત કર્યું છે। મૃતકોના પરિવારજનો માટે સાંત્વના પણ તેમણે પાઠવી હતી। ઘાયલોને સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે।